Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. All right, Jamie Alter मेरे साथ है. This is so much fun. Welcome to मेरी 90s की playlist. Thank you, Ronnie, so much. Really looking forward to this. I've also been following all you do, तो देखते रहते हैं. बहुत मजा आता है आपको देख के और आपके shows. और I think we're gonna have some fun today as well because we're talking about one thing which we both like: 90s movies. What can go wrong, actually? You know? Yeah, I mean, anyone who's watching this video right now on our YouTube channel, you know, obviously they'll say, अगर वो आपको जानते नहीं है, they'll say, यार ये तो मतलब इसका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है. Well, let's tell you right at the start that yes, जेमी साहब जो है वो टॉम वॉल्टर साहब के सुपुत्र हैं, बेटे हैं, and you know, so that's his connection with the movies. But आप, when I looked you up on the internet, you know, जब कोई थोड़ी सी भी एक्टिंग कर लेता है तो वो एक्टर कहलाने लगता है. You're not just an actor. You've done that as a moonlighting job, I'd like to assume. What you already have done... Good term you've used. है ना? What you've done though in your career has been mostly to do with sport. यानी कि आप एक sports journalist रह चुके हैं, एक sports editor रह चुके हैं, और इसके साथ साथ of course you've also been a YouTuber and you have a lot of fans, you know, following the sort of content you put out. So is this the right sort of description to describe what you've been up to? क्या ये सही होगा? Absolutely, ये बिल्कुल सटीक तरह से आपने कहा है. Yes, bread and butter for the last 16 years has been sports journalism. I've been really blessed to do that. बहुत मजा आया मुझे उसमें. पर होता है ना, sometimes life takes you here and there, तो फिर acting के offers तो आते रहते थे, but I never took it seriously. Then I said, you know what, before that proverbial car leaves the station, एक बार try करके देखो कहाँ जाता है. तो वहाँ भी I'm very blessed to have gotten some pretty unique roles. तो वो चल रहा है पिछले तकरीबन डेढ़ 2 साल से. फिर of course लॉकडाउन आया तो हम YouTube की और भी वहां निकले, because what does one do when you're sitting at home, right? And you know कि at least 2 साल तक ऑफिस बंद होने वाले हैं. तो YouTube शुरू किया. It's been a very fun ride. Thank you. It's going really well, and this is why we're not surprised at all कि आपकी हिंदी शायद मुझसे भी बेहतर है. Having said story that, of my life. Story of your life, yeah, seriously. You know, Jimmy, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ because I think we're around the same age, so I'd like to believe कि 90s में मैं तो मुंबई में थी. This is where I grew up, you know, मैं यहाँ पर पली बड़ी, and the films meant a lot to me. 90s में तुम कहाँ पर थे, कहाँ पर पले बड़े, and क्या चल रहा था यार फिल्मों के साथ? I think वही बहुत हमारी कॉमन चीजें हैं. मैं भी मुंबई में था. I like to say बॉम्बे. आजकल बॉम्बे कहते तो लोग जो जाते सर मुंबई बोलो. यार मैं मानता हूँ मुंबई है, लेकिन जिस दौर के बाद हम बात करें, for us it was Bombay. So I'm going to stick to Bombay. You might get some comments. कोई बात नहीं, सब ठीक है. So Rohini, I'm very fortunate कि ये जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, it was divided between Bombay and Mussoorie. हमारा मसूरी जो उत्तराखंड में है, उस टाइम यूपी में था. We have a family home there, so mine was split between them. But the years which I think we're going to be talking about on your show were very much based in Mumbai, in Bombay. तो ये जो एक आपको याद होगा, you advance booking के स्टॉल पे एक हफ्ता पहले जाना, Wednesday को आपको वहां पे खड़ा होना पड़ता था. ऐसा शायद कोई फ्राइडे नहीं गया रोहिणी जहां मैंने कोई फिल्म नहीं देखा हो. So from 92 to 95 मैं बिल्कुल बॉम्बे में था, और वहीं पे जो एक मेरा एक पैशन है फिल्मों के लिए था पहले से, but it became a passion in those 3 years. So That's fantastic. मैंने कहानी सुनी. I think हमारे क्विज पर, जो ना हम लोग एक साथ क्विज पर थे, and there were these couple of years, तुमने कहा कि मैं एक रूम के अंदर गया, उस रूम में कई सारे, वही 3 years. और वो 3 सालों में इतने सारे कैसेट थे, वो सारे कैसेट मैंने घिसा के सुन लिए. कौन से कैसेट थे? लेट्स स्टार्ट मेरी 90s की प्लेलिस्ट तुम्हारे साथ. पहला गाना कौन सा होगा तुम्हारी प्लेलिस्ट पर? कभी हाँ कभी ना से जो ओपनिंग ट्रैक है, जहाँ पे पूरे क्रेडिट्स आते हैं, दीवाना दिल दीवाना. This song, you know, we all have that one pick me up song कि आप कभी भी इसको लगाओ, किसी भी आपका मूड हो, जहाँ पे हो, it instantly just slaps a silly grin on your face and makes you happy. मेरे लिए रोहिणी ये वो गाना है. For many reasons. एक तो ट्यून ही अच्छा है. I love the film. I love the way it was shot. But something about that song, ना उस टाइम आप 12-13 साल के, यार कोई तो होगी हमारे लिए वो, आप अपने ख्याल में रहते हो. So somehow एक क्या बोलते हैं, सादगी थी उस गाने में. मुझे बहुत पसंद है वो गाना. I remember we watched the film and I think it was Minerva. 2 बार मैं देखने गया था वहां पे. फिर you know प्री इंटरनेट एरा में गाने जो है वो सिर्फ रेडियो पे आते थे, या what are those called, the countdown shows, Philips Top 10 और वो सब. तो ये ऐसे गाने देखे, that song for me really stuck, and it's a happy space that I go to when I hear that song. That's fantastic. So this is Jamie's first pick on मेरी 90s की playlist.
जेमी ऑल्टर मेरे साथ है एंड यस ही हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड आई वुड से 90s में। इन्होंने कहा कि कैसे वो एक कमरे में गए और फिर उन्होंने 3 साल लगातार कुमार सानू के सारे गाने सुन डाले एंड आई थिंक इट्स प्रीटी कूल मैन। सही है। और बहुत सारे गाने हैं एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कुमार सानू ऑफ कोर्स जेमी, इतने सारे गाने बट ऑल बिगैन विद आशिकी राइट? Absolutely, there is no one can deny that इनका जो rise था आशिकी से आया। Of course he sang songs before, he sang for बच्चन साहब, जितेंद्र and couple और पर जब वो शुरू हुआ था 1990 and of course I also have a very special connection with that film क्योंकि मेरे father उस फिल्म में थे। One of his bigger roles, not one of his best roles to be frank, but one of his bigger roles जो आज तक 30 साल हो गए शायद 30 साल, 31 years हो गए लोग, हो गए 31 years. People remember the film and even now, especially in the north, I live in Delhi, Noida, तो वहां पे हर ऐसा कोई दिन नहीं है जहां किसी भी गाड़ी से या किसी के ऑटो से या रिक्शा से वो गाना आशिकी के गाने नहीं चलते हैं। So for me, a very, very big part of my growing up was Ashiki. So Kumar Sanu, Nadeem Shravan, Gulshan Kumar, उनकी जो एक जुगलबंदी थी, that's where it began. कभी मिले कुमार सानू से जेमी? No, I have seen him on stage. Mid 90s में ये मेरे father he started doing a lot of these MC gigs, Master of Ceremonies. तो आपके जो screen film awards होते थे, he was the MC for 2 of those shows. तो एक बार कुमार सानू stage पे थे, but I was sitting next to Nadeem of Nadeem Shravan fame the whole time. तो ये था Film City में इन्होंने set लगाया था वहाँ पे, but I never had the pleasure to actually meet शानुदा। होगा एक दिन। मुझे याद है कि मैं सिंगापुर में थी और आई थिंक मिर्जा गालिब का ये जो शो था आया था सिंगापुर में, दिस वाज इन 2013 या 14 मुझे याद है, और तब मैंने टॉम ऑल्टर साहब को देखा था ऑन स्टेज and it was beautiful. He was so fantastic and as somebody जो ये मैं करती हूँ right, because this is what I do for a living. बिल्कुल। To witness that, जो कमान था लैंग्वेज पर, जो प्रेजेंटेशन स्टाइल था, जो मतलब साफ जुबान जिसे कहते हैं, oh my god. So for you it was Kumar Sanu on stage, for me it was your dad, so just putting it out there. Wow. All right, very sweet. So we're going to put this song out here. This is धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना. I'm assuming कि ये गाना होगा आशिकी का। यही वो गाना है। लोग आशिकी की बात करें तो it's very very tough होता है उस एल्बम में से एक गाना चुनना। Very very tough for me. I think तू प्यार किसी no sorry तू मेरी जिंदगी ये comes right there. But something about, I know it's a copied song, but that guitar riff जो शुरू होता है वहां से, again वही आप 10-11 साल को यार cool गाना है, अच्छा है, वो पापा के फिल्म में वो है। तो for me it's very hard, रोहिणी, but मेरे लिए number 1 वो गाना आता है धीरे धीरे से। This is so much fun, Jamie. I really believe कि इस show को जब मैंने डिजाइन किया, I kind of felt that asking someone to share their playlist would actually tell me a lot about that person, because it tells you memories of that person, it tells you about their life, because gaane, I don't know why, they're like time travel machines, ek gana sunte hain aap, you're transported into 93, 95, 97, whatever it is. So अगला गाना on मेरी 90s की playlist कौन सा है आज की सुबह? ये हम रिवाइंड करते हैं 1991, 92, पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर। आई थिंक एनीवन जो उस दौर से गुजरा है, कहीं पहला प्यार हो या जो भी हो, कुमारी हो या जो भी है, whatever word you want to use, उनके लिए ये गाना टॉप पे है, because just the way that ding 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 the piano starts and क्या ही बोलूं मैं उस गाने के बारे में, कम ही होगा वो। शायद उदित नारायण साहब का बेस्ट गाना हो। आई थिंक रोहिणी, I think he sang the best when he sings for Aamir Khan. इनके आप कोई भी देख लीजिए, है ना, बिल्कुल, चाहे वो क़यामत से क़यामत तक हो, जो भी हो, अकेले हम अकेले तुम, बहुत सारे, but this song just again going back to that pure innocence, lovely tune. Yes, I love that movie also, and I just love that song. पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर। मुझे याद है जब ये वीडियो हमने देखा था टेलीविजन पर, because I think this was such a great time. I just think about it, 91 में liberalization, और उसके ठीक suddenly हमारे television sets just became these sort of doorways to the world, right? Suddenly हम देखते थे टीवी पर क्या-क्या दिख रहा है, and एक coolness आ गई थी, और आमिर खान, I'll never forget, इस गाने के साथ I think मैंने अपनी जिंदगी में स्लो मोशन like हिंदी फिल्मों में पहली बार देखा, जहां पर एक पूरा गाना स्लो मोशन, और that was such a cool age, because हम भी स्कूल में थे, शायद हमें अपना पहला क्रश शायद उस टाइम पर हुआ होगा, and I think that feeling of that first love हमारी generation के लिए, like absolutely, even today if you think about that song, you're like
This is the visual representation of the first crush of anybody, है कि नहीं? बिल्कुल, और आप जो कह रहे हो, अब मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा इस बात को लेके। एक होता है ना कि you see it 91, then that song stays with you, फिर आप 96, 97, आप हाई स्कूल में आ चुके हो, आपके पास वॉकमैन है, आप वो गाना प्ले कर रहे हो, एंड फॉर द जनरेशन दैट डजंट नो कि वॉकमैन क्या होता है, आपको दबाना पड़ता था वो चीज टू गो बैक। तो 8-10 बार करने के बाद रोहिणी आपको याद होगा, यू नो कि अच्छा 30 सेकंड हो गए, शायद मैं वहां पे आ चुका हूँ स्टार्ट पे। बट देन टू प्ले दैट सॉन्ग एंड टू वॉक डाउन द स्टेप्स, यू हैव समवन हु यू लाइक इन माइंड, और आप भी वही टिंग डिडिंग, you must look like a total jackass to people who are watching you, but you have your headphones और आप वही कर रहे हो ना। 6-7 साल हो गए उस गाने को देखे हुए, but it has that same innocence। तो ये गाना मेरे लिए वो है। सो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। Absolutely love it. Jimmy has been a very successful YouTuber. He's been a sports editor, a sports journalist, an actor, and of course, he's somebody who shares the love of the 90s with me. हम दोनों एक दूसरे को actually सिर्फ ऐसे ही जानते हैं, like एक unidimensional like relationship है हमारा, because we are connected with the movies. That's about it. But Jimmy, I knew that having you, in fact, Twitter पर हमने actually quiz खेला था कुछ दिन पहले, और हम एक ही साथ उस जो आप जीती, congratulations once again। Thank you. बोलना बनता है। No, I was very excited because I pulled a full Sanju on that quiz. पहले तो इतने points गवाए और फिर जो change the gear किया मैंने, so I was like, this is a full जो tiebreaker। तो हमारे इस quiz के बाद जब हम इसके बारे में Twitter पर बात कर रहे थे, मुझे actually हमारे एक common listener या एक follower ने कहा, यार रोहिणी, why haven't you had Jimmy on May 90s की playlist? And I was like, yeah, I'm so stupid. This should have happened a long time ago. So here he is मेरे show पर. We've already played you a couple of tracks this morning, and if you're thinking कि playlist बेहद romantic है आज की सुबह, are you romantic, Jamie? I would like to think I am, but you know that my wife will be able to answer the question better. But एक होता है ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने मन में, तो आप hero हो, it doesn't always translate that way. But you know, just to link the music and the 90s, it's always been there. You know, I mean, we're so far beyond the 90s, but इनके गाने जो हैं 90s के मेरे साथ रहते हैं, मेरे फोन पे हैं। एक टाइम मेरे आईपॉड पे थे, आजकल सब फोन पे है। तो उसी को सुनते सुनते कहीं आप अपने मन में तो रोमांटिक बन ही जाते हो, और जो अगला गाना भी है वो भी एक रोमांटिक गाना ही है। हम ऐसे ही हैं। Let me tell you, this is of course the last song on मेरी 90s की playlist for today. यानी कि अक्सर मेरे गेस्ट जो हैं वो मुझसे कहते हैं कि पहले तो ये लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल था, 4 गाने कैसे कम, बहुत कम है। तो we will come back for another time and another season. So आज के इस पहले अपीयरेंस पर जेमी, what's the last song on your playlist? मुझे बता। this might be a bit of an unconventional song, maybe not, I don't know, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, but जैसे कि आपने कहा था 4 को चुनना, मतलब I start with like 10-12, तो इसको narrow down करने में दिक्कत हुई। I went for a song from दीवाना called सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। अब कुछ लोग सुनेंगे तो बोलेंगे ये क्यों, थोड़ा वीडियो को डिटैच करिए गाने से। अक्सर बहुत बेहतरीन गाने होते हैं जिनकी वीडियो इतनी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे जो है ऋषि कपूर साहब मरहूम, वो अपने टाइट व्हाइट कपड़े में पहन के नाच रहे हैं। तो इफ यू कैन गेट बियॉन्ड दैट, एंड आई लव द वीडियो टू, पर बहुत लोग बोलेंगे अच्छा वो गाना क्यों। इट जस्ट गोज बैक टू अगेन दैट टाइम फ्रेम जो है, ये 92 में आई थी। वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स आई सॉ इन अ थिएटर जब हम मसूरी से वापस बॉम्बे आए थे। इट वाज रनिंग इन मराठा मंदिर, जो कि हमारे घर से बिल्कुल 400 मीटर की दूरी है। तो वी यूज्ड टू गो टू वॉच मूवीज। सो इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग, एंड देन समथिंग अबाउट द सॉन्ग, जस्ट यू नो, वही है रोमांटिक वाली बात है, कोई ना कोई होगा, हम ऐसे चाहेंगे उनको, क्या वो हमें चाहेंगी। समथिंग अबाउट द लिरिक्स, एंड देन ऑफ कोर्स कुमार शानू, I think he even won a Filmfare Award for this song, अगर मैं गलत नहीं हूँ। and एक इंटरव्यू आया था स्क्रीन मैगजीन में 90s में, और अराउंड 92, जहाँ पे उनसे पूछा गया था कि आपके टॉप 10 सॉन्ग्स कौन से, और ये भी इनके टॉप 5 में था। तो मैंने कहा हाँ, इस गाने में कुछ है। Just a lovely song for me, and I'm always playing it. So दीवाना, मुझे ये फिल्म याद है because you know कहीं ना कहीं दीवाना was also an interesting time, right? क्योंकि Rishi Kapoor, yeah, the actors who were like really big in the 70s, 80s, they were kind of like exiting the scene, and there was this new energy, you know, Shah Rukh Khan के साथ, and film भी बिल्कुल ऐसी ही है। First half Rishi Kapoor और second half Shah Rukh Khan। मैंने कहा wow, if you had to pick a film that actually describes the sort of changeover, you know, जो 90s का changeover था in terms of like actors and faces, दीवाना is that film. बिल्कुल, एंड जैसे कि आपने कहा वो एनर्जी शाहरुख खान brought the whole factory of energy, you know,
शायद किसी भी हीरो का इतना डिलेड एंट्री नहीं हुआ किसी फिल्म में इंटरवल के पास, और वो भी ऐसे अंदाज से। वीव सीन मेनी फिल्म्स होनी जहां पे हीरो बाइक पे आते हैं, लेकिन बाइक की एंट्री एंड ऑफ कोर्स वी न्यू कि ये बंदा टीवी से है, दिल्ली से है, बट फॉर मी लाइक वाओ, ये बंदा है कौन। एंड आई रिमेंबर इन्होंने एक स्टारडस्ट का इंटरव्यू दिया था उसी साल, वन ऑफ द फर्स्ट वन, एंड द हेडलाइन वाज आई हेटेड माई सेल्फ इन दीवाना। अब मैंने कहा ये बंदा ऐसा बोल रहा है कि आई हेट, एंड दैट इंटरव्यू इज लाइक इम्प्रिंटेड इन माई माइंड, तो वहां से मैं उनका बहुत बड़ा फैन बन गया। काम तो था ही उनका अलग, but he said, yeah, I was hamming, I couldn't stand still, I was awful, which producer would put money on me? मैंने कहा जो बंदा ऐसा बोल सकता है, ये अलग कुछ चेंज ला रहा है इंडस्ट्री में। So it goes exactly back to what you were saying. The change did in fact begin with Deewana for many reasons. सेल्फ अवेयरनेस, दाई नेम इज शाहरुख खान। हाल ही में उन्होंने एक एड किया है स्टैंडिंग ऑन हिज बैल्कनी, जहां पर लोग कहते हैं सर 90s खत्म हो गया है। लेकिन यार मैं एक आपको बात बता दूं, 90s कभी खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज 90s के दीवाने उसे जिंदा रखेंगे, एंड दैट इज व्हाट मेरे 90s की प्लेलिस्ट इज ऑल अबाउट। जिमी, मेरे शो पर आने के लिए, एंड एज आई सेड दिस इज ओनली द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकॉज 90s में बहुत सारे गाने हैं, एंड विल प्रोबेबली हैव यू बैक, आई इंसिस्ट। सो थैंक यू सो मच आज मुझे अपना वक्त देने के लिए। Thank you, Rohini, so much. बहुत मजा आया। 4 गाने वाकई में कम है, तो जरूर आगे होगा। And again, just want to give a big shout out to you, and love your stuff, love your work, love the 90s, and keep doing this playlist. It's a great concept. और लोग को भी ले आएगा आप इस शो पे। Radio Nasha.